All right. Bismillahirrahmanirrahim. As always, I have a collection of your problems and we are going to start discussing them one by one और कोशिश करेंगे कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा questions हम include कर सकें आज की इस क्लास में हम कर लें. I have a lot of questions from a lot of students, so let's begin. The first question here, it says, a cell has a constant EMF. Okay. A variable resistor is connected between the terminals of the cell. All right. The resistance of the variable resistor is decreased. कि resistance को हम decrease करते हैं. Which statement about the change of the cell's terminal potential difference is correct? जैसे ही terminal potential difference का जिक्र आता है, इसका मतलब ये होता है कि सेल के साथ हमें सीरीज में एक internal resistance भी लगानी है. This cell has an EMF E and an internal resistance R, and the voltage across the battery is going to be called the terminal potential difference. Let's just recall the equation. EMF equals to current into the internal resistance plus current into the external resistance. This is the equation for the Kirchhoff's voltage law. Kirchhoff's voltage law, the second law. According to the Kirchhoff's voltage law, in a closed loop, the amounts of EMF added together should be equal to the amounts of potential drops. So here there are two resistors. One is the internal resistance, one is the external resistance. So IR is the voltage consumed in the internal resistor plus IR is the voltage consumed in the external resistor. The same equation can be written as the EMF equals to I into R plus the terminal potential VT. Now, from this equation, we can see that the terminal potential depends on the current that flows. Now, the question asks us, which statement about the change of the cell's terminal potential difference is correct? We have to comment which statement is correct for this VT upon when it is changed. The terminal potential difference is decreased. Acha. The resistance of the variable resistor is decreased. That's also an important piece of information. जब हम ये external resistor की resistance को decrease करते हैं, तो उससे क्या होता है? उससे ये होता है कि current increase हो जाता है. Current increases. सही सफेद है So, सही I request you to keep yourself muted. हाँ पण हे दुखते ना All right. Coming back. Current increases, so terminal potential decreases. What does that mean? That means टर्मिनल पोटेंशियल वो वोल्टेज होता है जो बैटरी के बाहर अवेलेबल होता है. बैटरी के बाहर तो बस एक ही रेजिस्टर है ना. अगर उस रेजिस्टर की रेजिस्टेंस को हमने डिक्रीज किया तो क्या होगा? या पहले से कम वोल्टेज डिमांड करेगा. टर्मिनल पोटेंशियल इज द वोल्टेज दैट इज अवेलेबल आउटसाइड द बैटरी. तो अगर बाहर ही कम वोल्टेज चाहिए, इसका मतलब है कि टर्मिनल पोटेंशियल डिक्रीज हो चुका है. Now we have to check which of the options is correct for this. Terminal PD decreases because more work is done moving unit charge through the internal resistance of the cell. That makes sense. तो ये कह रहे हैं कि टर्मिनल पोटेंशियल डिक्रीज हो जाता है क्योंकि ज्यादा वर्क करना पड़ रहा है इंटरनल रेजिस्टेंस के थ्रू चार्ज को गुजारने के लिए. इसका मतलब होता है कि बैटरी के अंदर जो रेजिस्टेंस है वो ज्यादा वोल्टेज कंज्यूम कर रहा है. ये ऑप्शन ठीक हो सकती है. जरा बाकी ऑप्शंस भी देखते हैं. Terminal PD is decreased because the current in the variable resistor is decreased. ये बात तो ठीक नहीं है. वेरिएबल रेजिस्टर की रेजिस्टेंस कम होने से करंट ने इंक्रीज होना है. तो इधर तो कह रहा है कि करंट डिक्रीज हुआ है. ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है. सी देखते हैं. द टर्मिनल पीडी इज इंक्रीज बिकॉज मोर वर्क इज डन इन मूविंग यूनिट चार्ज थ्रू द वेरिएबल रेजिस्टर. ये बात तो गलत है क्योंकि अभी अभी मैंने आपको बताने की कोशिश की कि जब रेजिस्टर की रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो ज्यादा करंट फ्लो होगा जिसकी वजह से बाहर कम वोल्टेज चाहिए होगा, अंदर ज्यादा वोल्टेज चाहिए होगा.
तो टर्मिनल पीडी इज इंक्रीज, ये बात भी गलत हो गई। टर्मिनल पीडी इज इंक्रीज, ये बात फिर से गलत हो गई है। सो द करेक्ट आंसर इज सपोज टू बी ए। Please leave me a message or give me a thumbs up if everything's okay so far. जब बैटरी के बाहर रेजिस्टेंस कम होती है, करंट ज्यादा होता है, बैटरी के बाहर कम वोल्टेज कंज्यूम होता है, बैटरी के अंदर ज्यादा वोल्टेज कंज्यूम होता है। That's great. Moving on to the next question here. It says the wire is fixed at one end and extended by a force that is applied to the other end. The force is slowly increased from zero and then slowly decreased back to zero. अच्छा, अगर आपको ये बात नहीं पता तो मैं रिकॉल करवा देता हूँ। दिस इज अ फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ। फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ, जैसे जैसे हम फोर्स बढ़ाते हैं एक्सटेंशन लीनियरली बढ़ती है until a point called the limit of proportionality. लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के बाद ये लाइन कर्व होने लग जाती है, एक पॉइंट आता है जिसको हम इलास्टिक लिमिट कहते हैं। इलास्टिक लिमिट, ये सारा पार्ट जिसको मैं इधर सर्कल करके दिखा रहा हूँ, ऑल ऑफ दिस इज शोइंग इलास्टिक बिहेवियर। इलास्टिक बिहेवियर का मतलब होता है अगर किसी भी मौके पे मैं फोर्स को रिमूव कर दूं तो वो जो भी स्प्रिंग है या कॉर्ड है, इट इज गोइंग टू गो बैक टू जीरो एक्सटेंशन। दिस पॉइंट इज द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। फिर आता है इलास्टिक लिमिट, जो लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी से थोड़ा सा आगे होता है। इसके बाद आता है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन वो होती है जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट परमानेंटली डिफॉर्म होना शुरू कर देता है। दैट मीन्स अगर मैं फोर्स को रिमूव करना शुरू करूं तो कभी भी ये ऑब्जेक्ट अपनी ओरिजिनल एक्सटेंशन पे वापस, यानी जीरो एक्सटेंशन में वापस नहीं आएगा। इट विल हैव अ परमानेंट नॉन जीरो एक्सटेंशन। Acha. Now, let's see what the question says. The graph line for the wire being loaded is the same as the graph line for the wire being unloaded. ये एरो इंडिकेट कर रहा है कि अभी हम फोर्स को बढ़ा रहे हैं तो एक्सटेंशन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है। ये वाली लाइन, ये वाला एरो इंडिकेट कर रहा है कि हम फोर्स को आहिस्ता आहिस्ता अब कम करना शुरू कर देते हैं तो एक्सटेंशन कम होने लग जाती है। मुझे बताएं कि अभी इसने अपनी इलास्टिक लिमिट को क्रॉस किया है? Has this spring crossed its elastic limit yet? No, it has not, because there is no permanent deformation. Which statement describes the deformation of the wire? It is both elastic and plastic, तो ये बात तो गलत है। Plastic deformation तो अभी तक हुई नहीं है। It is elastic only, ये हो सकता है। It is neither elastic nor plastic, ये बात तो गलत है। Elastic का मतलब होता है कि जब फोर्स को रिमूव करें तो वापस जीरो एक्सटेंशन पर वापस आए। इट इज प्लास्टिक ओनली, प्लास्टिक का मतलब होता है फोर्स को रिमूव करने पर उसमें एक परमानेंट एक्सटेंशन रह जाए। तो ये तीनों बातें गलत हैं। ए, सी एंड डी आर गलत। करेक्ट आंसर शुड बी बी। प्लीज गिव मी योर फीडबैक इफ एवरीथिंग इज ओके सो फार। मैंने क्विकली एक रिव्यू भी दे दिया आपको अबाउट दिस टॉपिक। गिव मी अ थम्स अप और सेंड मी अ मैसेज। शाबाश, दैट्स ग्रेट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर। A projectile of mass 0.25 kg, अच्छा भाई, is at a height of 30 meter above horizontal ground and traveling at a speed of 15. A short time later, it is at a height of 35 above the horizontal ground and traveling at a speed of 5. अच्छा, let's say ये एक प्रोजेक्टाइल है, इसको ऐसे करके हमने फेंका है, ये जाता है वापस आ जाता है। हॉरिजॉन्टल ग्राउंड से 30 मीटर ऊपर है, यहाँ पर उन्होंने बताया है उसकी स्पीड है 15। A short time later it is at a height of 35, अच्छा थोड़ी देर के बाद वो एक हाइट पे है 35 पे और इस वक्त उसकी स्पीड है 5 मीटर्स पर सेकेंड। आपसे कहते हैं हाउ मच वर्क इज डन अगेंस्ट एयर रेजिस्टेंस ड्यूरिंग दिस टाइम। हाउ मच वर्क इज डन अगेंस्ट द एयर रेजिस्टेंस। अब देखें, मुझे ये बात समझ आ रही है कि काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूला यूज हो सकता है और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूलाज यूज हो सकते हैं एंड वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन के फॉर्मूलाज यूज हो सकते हैं। क्यों? मुझे कैसे पता यही करना है? तो प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन नहीं है जी, नहीं है। प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर मैस का क्या काम है ना? मैस दिया हुआ है और हाइट्स दी हुई है और स्पीड्स दी हुई हैं।
this is my indication that energies are going to be involved. Energies. So at this position and at this position, the total energies should be the same. This is bottom and this is top, let's say. So sum of energies at the bottom should be equal to sum of energies at the top. At the bottom, there are two energies. एक तो है kinetic energy at the bottom plus gravitational potential energy at the bottom. और energy at the top, दो तरह की energies है. Kinetic energy at the top plus gravitational potential energy at the top plus work done against friction. क्योंकि वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन हमेशा फाइनल वाली साइड पे ऐड होता है. काइनेटिक एनर्जी एट द बॉटम के लिए हाफ इनटू मास है 0.25 और वेलोसिटी थी या स्पीड थी 15 स्क्वायर प्लस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट v is going to be 0.25 into 9.81 into height कितनी है 30. Now kinetic energy at the top is going to be half into 0.25 into 5 square plus 0.25 into 9.81 into 35 plus the work done against friction. Now, work done against friction हमें find करना है, बाकी सारी चीजें वहां जाकर subtract हो जाएंगी. So please solve this for me if you have a calculator. I'm just quickly going to go and grab my calculator as well. The left hand side gives me 101.7 equals to the right hand side that gives me 88.9625 plus the work done against friction. I'm interested in the work done against friction, तो ये वाली वैल्यू पूरी वहां जाके सब्ट्रैक्ट हो जाती है. Work done against friction comes out to be 101.7 minus 88.96. The answer is 12.74. The closest answer to that is going to be 13 joules. All right, please give me your feedback about the question. Everything okay so far? All right, moving on to the next question. It says the diagram shows a screen that is a distance L from diffraction grating. The grating has a total number of n lines. Acha, total number of n lines. Any two adjacent lines are a distance d apart. Yes, small d hai. Any two lines. A beam of parallel light of wavelength lambda is incident normally on a diffraction grating. Acha. Equation होती है d sin theta equals to n lambda. फर्स्ट ऑर्डर है, इसका मतलब है स्मॉल n तो 1 के बराबर होगा. Which quantities affect the distance between the first order maxima on the screen? इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस को कौन सी वाली वैल्यूज अफेक्ट करेंगी? ये डिस्टेंस तभी चेंज होगा ना जब इनके दरमियान जो एंगल थीटा में इंडिकेट कर रहा हूँ ये चेंज हो जाएगा. So basically they are asking us which of these quantities d, lambda, l and n will affect theta. हम देख सकते हैं साइन थीटा इक्वल्स टू एन लैम्डा डिवाइडेड बाय डी. लैम्डा वेवलेंथ शुड अफेक्ट इट. ओके, सो जहां जहां पर वेवलेंथ टिक्स हैं वो ऑप्शंस ठीक हैं, जहां क्रॉस है वो क्रॉस हो गया. और स्मॉल डी इट इज द गैप बिटवीन द लाइंस ऑन द डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग. तो जहां जहां पर डी टिक है वो वाली ऑप्शंस ठीक होनी चाहिए. ए एंड बी शुड बी द राइट आंसर. अब देखते हैं एल एंड एन. एल, अब ये एल को अगर मैं इंक्रीज कर दूंगा, इंक्रीज करने का मतलब ये है कि मैं स्क्रीन को थोड़ा सा पीछे ले जाऊंगा. तो आप देख सकते हैं फॉर द सेम एंगल द फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा विल नाउ बी फॉर्म्ड ओवर हियर एंड द top first order maxima will be formed over here. So we were trying to find out the factors which will affect the gap between them, right? So the distance L is going to affect this distance between the first order maximas.
Okay. Even though in this equation there is no capital L present, but the common sense dictates that if I move the screen backwards and increase the distance between diffraction grating and the screen, the maximas are going to be further away. I hope you remember lambda equal to ax by d. X was directly proportional to d. जितना दूर रखते हैं हम स्क्रीन को उतना ही गैप बिटवीन द फ्रिंजेस बढ़ जाता है. इसका मतलब है कि ये L is also going to affect it. By that logic, the correct answer is going to be A. Keep this in mind. This small n is not lines per, sorry, capital L. Capital L is not the lines per meter. आपको याद करवाता हूँ. हमने जब डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का टॉपिक पढ़ा है तो स्मॉल d इज इक्वल टू 1/कैपिटल N. इन दिस क्वेश्चन ये वाला कैपिटल N और ये वाला कैपिटल N दोनों सेम नहीं है. This N was number of lines per meter, but this capital N just indicates the total number of lines, not the lines per meter. So do not get confused by that. अब डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग पे जितनी भी लाइंस बढ़ा दें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. लाइंस पर मीटर से फर्क पड़ता है. यानी सेम लेंथ रखें अगर आप ग्रेटिंग की और उसमें नंबर बढ़ाएं तो फिर हाँ दैट विल अफेक्ट. द नंबर ऑफ लाइंस आर नॉट गोइंग टू अफेक्ट ऑन देयर ओन. So the correct answer should be A in this regard. मुझे बताइएगा क्या आपको ये कैपिटल एन वाली बात समझ आई है एवरीबॉडी? Let's move on to the next question here. मैं पोलराइजेशन के क्वेश्चंस कर करके तंग आ गया हूँ यार. सो इजी, सो इजी. सिर्फ ध्यान से पढ़ना होता है. लेट्स सी. A beam of vertically polarized light is incident normally on a polarizing filter. The filter can be rotated so that it is always in a plane perpendicular to the beam. ये ऐसे rotate हो सकता है. Okay. The transmission axis of the filter is initially vertical. The filter is first rotated clockwise by an angle of 30 degrees. ये है जी एक vertically polarized light. So that the transmitted light waves have intensity I30. Okay. The filter is then rotated clockwise by a further angle of 30. अच्छा. पहले जब 30 पे रखा है तो transmitted IT equals to I naught cos of theta. Transmitted IT was equal to I naught into cos of 30 का square. So ये जो ट्रांसमिटेड है इसको I30 कहा जा रहा है. इट्स गोइंग टू बी I naught मल्टीप्लाइड बाय cos 30 स्क्वायर. फाइंड आउट कर ले. cos 30 squared, that's going to be 0.75. So I30 is actually equal to I naught into 3/4. अब आपसे कह रहे हैं द फिल्टर इज देन रोटेटेड क्लॉकवाइज बाय अ फर्दर एंगल ऑफ 30. अब इसको और रोटेट कर दिया तो अब टोटल एंगल कितना हो जाएगा? 60. तो I60 is going to be equal to I naught cos of 60 का स्क्वायर. तो देखते हैं cos of 60 का स्क्वायर. द आंसर इज 0.25. I60 is equal to I naught into 0.25. ये 0.25 लिखने की बजाय ना मैं इसको 1/4 लिख देता हूँ. अब ये वो नई इंटेंसिटी है और ये हमारा आंसर होना चाहिए. लेकिन हमारे आंसर को आई नॉट की टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं किया गया, I30 की टर्म्स में एक्सप्रेस किया गया. इसका मतलब है जो रिजल्ट मैंने पहले बनाया था ना ये वाला, इसको उठा के किसी तरीके से यहाँ आई नॉट की जगह सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा. आई नॉट इज इक्वल टू 4I30 डिवाइडेड बाय 3. अब बस इसको उठाना है और इधर डाल देना है. I60 equals to 4/3 I30 into 1/4. 4 और 4 कट जाता है. I30 multiplied by 1/3. So correct answer is going to be 0.33 I30. It's just mathematical manipulation. पहले जब 30 पे था एंगल तो ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी कितनी थी मैंने वो फाइंड कर ली.
उसके बाद जब 60 हुआ तो ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी कितनी थी, मैंने वो फाइंड कर ली। फिर उसके बाद मैंने ऑप्शंस देखी जी, सारी ऑप्शंस में I30 आ रहा था। तो मुझे क्या करना था, आई नॉट विच वॉज कॉमन इन बोथ इक्वेशंस, ऊपर वाली इक्वेशन से आई नॉट को सब्जेक्ट बना के नीचे वाली इक्वेशन में डाल दिया मैंने, बस और कुछ भी नहीं किया। जी, आई एम वेटिंग फॉर योर फीडबैक्स, प्लीज सेंड मी अ मैसेज, गिव मी अ थम्स अप और व्हाटएवर। एवरीथिंग ओके पीपल? चलो, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इट सेज अ सबमरीन of total mass 3200 kgs। अच्छा भाई, सबमरीन का टोटल मास है 3200 kgs। तो यकीनन इसका वेट कितना होगा, 3200 और आगे एक जीरो और लगा देते हैं, ये उसका वेट होगा। कहते हैं द टोटल मास ऑफ द सबमरीन इज सडनली डिक्रीज्ड बाय 20 kg। है अच्छा, एकदम से कैसे होता है, बेसिकली ये सबमरीन में ना इस तरह से एक चेम्बर होता है जी, यहाँ पर लोग रहते हैं या जो भी काम शाम हो रहा होता है, और बाकी साइडों पर हॉलो एरिया होता है। इस हॉलो एरिया के अंदर ना ऐसे पानी भर के इसकी टोटल डेंसिटी को कम या ज्यादा कर सकते हैं। जब पानी भर देते हैं तो ये नीचे सिंक कर जाती है, जब पंप्स के जरिए पानी बाहर रिमूव कर देते हैं तो हवा भर जाती है, और हवा भरने की वजह से ये फिर ऊपर की तरफ चली जाती है। दैट्स हाउ सबमरीन्स एक्चुअली वर्क। अच्छा, वो कहते हैं कि एकदम से उसका जो मास है वो 200 kg हमने डिक्रीज कर दिया, तो नया मास आ गया 3000 kilograms। The upthrust acting on the submarine is unchanged। Upthrust, upthrust क्या होता था, density of the liquid into gravity into volume of the object that got immersed। अच्छा, वो हमें कह रहे हैं कि इट वॉज एट रेस्ट अंडर वाटर। क्या खूबसूरत सवाल है, एट रेस्ट। एट रेस्ट का मतलब है पहले जब पानी भरा हुआ था ना, तो 3200 न्यूटन इसकी नीचे की तरफ इसका वेट था, और 3200 न्यूटन इसकी अपथ्रस्ट थी। आप पूछेंगे सर आपको कैसे पता लगा, क्योंकि वो रेस्ट पे है ना। रेस्ट पे होने का मतलब है कि अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्सेस दोनों बराबर हैं। फिर वो ये कहते हैं कि हमने उसका अपथ्रस्ट को चेंज नहीं किया, ये क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है अनचेंज्ड, लेकिन उसके वेट को चेंज कर दिया। 3200 से चेंज होके ये हो गया 3000 न्यूटन। अब आपसे कह रहे हैं द चेंज इन द टोटल वेट ऑफ द सबमरीन कॉजेज इट टू एक्सेलरेट वर्टिकली अपवर्ड्स। अब जी कैसे, आपसे कह रहे हैं इनिशियल अपवर्ड्स एक्सेलरेशन निकाल लो, दैट्स काइंड ऑफ इजी। एफ नेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स है 3200 माइनस 3000, और उसका मास, अच्छा फोर्स निकालनी थी ना, 32,000 होना चाहिए था माइनस 30,000, और मास हो जाएगी डिवाइडेड बाय 3000 इक्वल्स टू ए। सो द फोर्स वाज 2000 डिवाइडेड बाय 3000, इसका मास है इक्वल टू ए। 2/3 दैट इज 0.66 meters per second square. So by that logic, the correct answer needs to be B. All right, waiting for your feedback, people. Tell me, how was that a question? Right, moving on to the next question here. That says, a cell is connected in series with an ammeter. A cell is connected in series with an ammeter and a variable resistor। ये cell है, ये एक ammeter से connected है और एक variable resistor से connected है। A voltmeter is used to measure the potential difference across the variable resistor। ले जी, ये है voltmeter। The resistance of the variable resistor is varied। वो कहते हैं variable resistor की resistance को हमने vary किया है, and the potential difference and the current are recorded। Okay, the graph shows the variation with current of the potential difference across the variable resistor। क्वेश्चन में कह रहे हैं व्हाट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। ओके, इसका मतलब है इस सेल के साथ एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी है। नाउ दैट काइंड ऑफ सिंप्लीफाइज थिंग्स। मैं आपको जरा याद करवाता हूँ, मेरा मेरा साथ दीजिएगा प्लीज। EMF was equal to I into R plus the terminal potential।
टर्मिनल पोटेंशियल क्या होता है? वो वोल्टेज जो बैटरी के बाहर अवेलेबल होता है। ओके, सो if I rearrange this equation, I will get Vt equals to E minus IR. जरा जल्दी से मैथमेटिक्स परफॉर्म करके देख लें। मैं Vt को वही रहने देता हूँ, IR वहां जाके सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, तो E माइनस IR एक तरफ बच जाता है। Now, just by looking at this equation, if I place that on y-axis and I place I on the x-axis, और इस क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन बन रही है ना, तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से इसको कंपेयर कर लेते हैं। कंपैरिजन से पता चला कि y इंटरसेप्ट विल शो मी द ईएमएफ। ये देखें, यहाँ y इंटरसेप्ट है 1.6, दैट मींस दिस इज गोइंग टू बी माय ईएमएफ। हमसे इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने को कह रहे हैं। सो बाय दिस लिटिल एनालिसिस, ये मैंने आपको P3 के लिए भी सिखाया हुआ है। आप यहाँ से देखें, m the gradient of the equation is going to be equal to the negative of r। ये बात आपको लेक्चर्स के दौरान भी बताई गई है कि इस तरह के ग्राफ का ग्रेडियंट विल शो यू द इंटरनल रेजिस्टेंस। तो अब आप सिंपली इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए ग्रेडियंट फाइंड आउट कर लें। 20 milliamperes and PDF 1.2, और at this point current has 0, EMF है 16। तो राइज कितना है? 1.6, सॉरी, 1.6 माइनस 1.2 डिवाइडेड बाय 220 मिली है। मिली होता है 10 की पावर -3। 0.4 डिवाइड बाय 1 2 3 0.02। So the answer is going to be 20 ohms. G, we take a little break and see what's your feedback about the question. Yes, people? A wire consists of 3 meters length of metal X joined to a 1 meter length of metal Y. अच्छा भाई, the cross-sectional area of the wire is uniform. A load hung from the wire causes metal X to extend by 1.5. अच्छा, X जिसकी ओरिजिनल लेंथ थी 3 मीटर्स और एक्सटेंशन थी उसकी 1.5 मिलीमीटर्स, और वायर Y जिसकी ओरिजिनल लेंथ थी 1 मीटर और इट एक्सटेंडेड बाय 1 मिलीमीटर। अच्छा भाई, the same load is then hung from a second wire of the same cross sectional area consisting of a 1 meter length of metal। लो भाई, ये लो, 1 meter length of metal X है और इसके साथ ही एक Y हैंग किया हुआ है, और कहा जा रहा है यकीनन Y की लेंथ है 3 मीटर्स। आपसे कहते हैं व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ द सेकंड वायर। अब इस वायर की एक्सटेंशन निकालनी है। लोड हमने सेम हैंग किया है, जितना पहले था उतना ही अभी भी है। गौर से देखिएगा, कोई खास मुश्किल बात नहीं है। एक्स जिसकी लेंथ 3 मीटर थी उसने 1.5 मिलीमीटर एक्सटेंशन शो की। आपके लिए लिखता हूं, लॉन्गर वायर्स शो मोर एक्सटेंशन। जो तार जितनी लंबी होती है वो उतनी ही ज्यादा एक्सटेंशन शो करती है। इसका क्या मतलब है? 3 मिलीमीटर 1.5 मिलीमीटर शो करेगी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द सेम फोर्स। अब अगर ये 1 मीटर हो गई है, तो आप देखें लेंथ 1/3 हुई है, तो एक्सटेंशन भी 1/3 हो जानी चाहिए। फिर उसके बाद y जो 1 मीटर की थी वो 1 मिलीमीटर एक्सटेंशन शो कर रही थी। अब इसकी लेंथ को 3 मीटर कर दिया गया, यानी 3 टाइम्स बढ़ा दिया गया है, तो इसकी एक्सटेंशन भी 3 टाइम्स बढ़ जाएगी, 3 मिलीमीटर। तो अब आप देख लें टोटल एक्सटेंशन कितनी हुई। वायर एक्स विच एक्सटेंडेड 0.5 and wire y which extended by 3, so that should give us 3.5 millimeters. So the correct answer is going to be B. सेम फोर्स लग रही है, जो पहले 3 मीटर लंबी तार थी वो अब 1 मीटर की हो चुकी है, तो इसका मतलब है उसकी एक्सटेंशन भी 3 टाइम्स कम हो जाएगी। पहले 1.5 थी, 3 टाइम्स कम करके 0.5 आ जाएगी।
वायर वाई जो पहले 1 मीटर की थी 1 मिलीमीटर एक्सटेंशन शो करती थी, अब उसकी लेंथ को 3 मीटर्स कर दिया गया है, तो उसकी एक्सटेंशन भी 3 टाइम्स बढ़ जानी चाहिए, 1 × 3। जी, लेट मी नो अबाउट योर फीडबैक। Wow. That's the simplest of questions. Come on, people, pick up your game. देखते हैं। The current in the two ammeters are identical. This means that this circuit is overall a series circuit. सीरीज सर्किट का मतलब है कि ये 1 और 3 आपस में जुड़ने चाहिए, 2 और 4 आपस में जुड़ने चाहिए। बाकी ना 1 और 2 का कोई कनेक्शन हो, ना 3 और 4 का कोई कनेक्शन हो। जस्ट लुक एट द ऑप्शंस। Which of the options actually connect 1 with 3 and 2 with 4 and no other connection? That's going to be option D. Any other option that you choose is going to be different. Let's say, let's say you like option C better. So what do? कनेक्ट करके देख लेते हैं। एक ये रेजिस्टर 1 और 3 के दरमियान कनेक्ट हो गया, एक ये रेजिस्टर 1 और 2 के दरमियान कनेक्ट हो गया, एक ये रेजिस्टर 2 और 4 के दरमियान कनेक्ट हो गया, ये वायर। दैट्स काइंड इजी। यहाँ से जितना भी करंट आएगा वो पहले इस वाले एमीटर में से गुजरेगा। दैट विल शो मी द टोटल करंट। फिर उसके बाद वो दो पार्ट्स में स्प्लिट हो जाएगा। दो पार्ट्स में स्प्लिट हो जाने का मतलब है नाउ दिस एमीटर विल नॉट हैव द सेम करंट एज द फर्स्ट वन, क्योंकि पैरेलल में करंट सेम नहीं रहता है, ये पैरेलल सर्किट बन चुका है। इसलिए ऑप्शन सी ठीक नहीं थी। ऑप्शन डी नीड्स टू बी द करेक्ट आंसर। आई होप आप लोग मेरे साथ हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई थिंक आई हैव सॉल्व्ड दिस क्वेश्चन पहले एज वेल सो मेनी टाइम्स। चलो एक दफा फिर से सही देखते हैं। Two blocks K and L slide together towards each other along a horizontal frictionless surface. So boring. The diagram shows the momentum of the two blocks just before they collide. ये momentum है, momentums. Okay. During the collision, the blocks are in contact with each other for a time of this much. अच्छा, इतनी सी बात सुन के ना मुझे याद आया F equal to delta P by T देखना पड़ेगा शायद। After the collision, the blocks separate and block L moves back along its original path. ये L वापस जाता है और इसका फाइनल मोमेंटम है 0.12। आपसे कहते हैं व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। दैट्स वेरी इजी। इस फॉर्मूला के अंदर ये जो चेंज इन मोमेंटम आता है ना, ये सिंगल ऑब्जेक्ट का है। एक अकेला ऑब्जेक्ट का कितना चेंज इन मोमेंटम आएगा देखते हैं। फाइनल मोमेंटम माइनस द इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। फाइनल मोमेंटम है 0.12 माइनस 0.46, then time of contact is 0.084. You simply just solve this 0.12 plus 0.46, that gives you 0.58 divided by 0.084. 0.58 divided by 0.084, the answer is 6.9. So the correct answer is going to be C. That's great. चलो आगे चले। तभी नहीं हो रही यार। स्प्रिंग, अच्छा कुछ नया कोई दूसरा डिफरेंट क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज अ लवली क्वेश्चन। अगर अल्लाह कभी तौफीक दे तो हम इसको ट्राई करेंगे। आई वांटेड टू डिस्कस दिस विद एवरीबॉडी। इम्पोर्टेंट। सोर्स emits a progressive sound wave in a horizontal direction. इमेजिन करें कि ये मेरे पास ना एक स्पेस है जिसमें मेरे पास बहुत सारे एयर मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। एयर मॉलिक्यूल्स, दे आर ऑल इवनली स्पेस्ड। They are all evenly spaced. Now, imagine करते हैं
अगर इसमें इधर एक कंप्रेशन क्रिएट हो, इधर एक रेयरफैक्शन क्रिएट हो, इधर एक कंप्रेशन क्रिएट हो, तो जहां जहां कंप्रेशन, रेयरफैक्शन एंड कंप्रेशन क्रिएट होते हैं ना, ये वाले मॉलिक्यूल्स अपनी जगह पे रहते हैं, जरूरी बात है। all the molecules which are present at exactly the same position जहां compressions, rarefactions और compression ने create होना होता है, वो molecules कहीं पे भी नहीं जाते। कंप्रेशन से आगे वाले जितने मॉलिक्यूल्स हैं, दे ट्राई एंड मूव बैकवर्ड्स, क्योंकि कंप्रेशन तो तभी क्रिएट होगा ना जब मॉलिक्यूल्स करीब करीब आएंगे। कंप्रेशन के पीछे वाले मॉलिक्यूल्स आगे की तरफ मूव करते हैं, सो दैट डेंसिटी स्टार्ट्स टू इंक्रीज वेयर अ कंप्रेशन इज क्रिएटेड। वेयर रेयरफैक्शन में क्या होता है, पीछे वाले पार्टिकल्स पीछे जाते हैं, जाहिर है दे हैव टू कंट्रीब्यूट टू द कंप्रेशन। आगे वाले पार्टिकल्स आगे जाते हैं, दे हैव टू कंट्रीब्यूट टू द आगे वाला कंप्रेशन। तो होता ही है कि कंप्रेशन के आगे वाले पार्टिकल्स हैव नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि वो पीछे की तरफ मूव कर रहे हैं। कंप्रेशन से पीछे वालों की पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट होती है, क्योंकि वो आगे की तरफ जाना चाहते हैं। रेयर फैक्शन में क्या होता है, रेयर फैक्शन के आगे वाले पार्टिकल्स सारे आगे की तरफ जाते हैं और पीछे वाले पार्टिकल्स पीछे की तरफ जाते हैं। सो wherever particles have negative displacement, particles of sound wave have negative displacement behind a rarefaction and ahead of a compression। यानी कंप्रेशन से आगे वाले पार्टिकल्स की नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट होती है, या फिर रेयरफैक्शन के पीछे वाले पार्टिकल्स की नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट होती है। दैट वाज एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अबाउट द साउंड वेव जो मैंने आपको बताने की कोशिश की। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन। दे से position y represents the displacement of a particle in the sound wave at a particular distance from the source at this instant। मुझे नहीं पता वो कॉन्सेप्ट यहाँ यूज होगा या नहीं होगा, लेकिन मैंने वो साउंड वेव के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात आ रही थी मेरे जहन में, तो मैंने सोचा आपको बता दूं। नाउ which statement about the motion of this particle is correct? The particle is moving away from the source। बाय द वे यहाँ पर इसका एक सोर्स है। आप नोटिस कर सकते हैं कि ये वाई वाले पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है। नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब होता है, दिस पार्टिकल मूव्स लेफ्टवर्ड्स, दिस पार्टिकल मूव्स लेफ्टवर्ड्स। नाउ पार्टिकल मूव्स अवे फ्रॉम द सोर्स, अगर ये सोर्स है और इससे अवे जा रहा होता तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट होनी चाहिए थी ना, लेकिन अगर वो उसकी तरफ जा रहा है, सोर्स की तरफ, तो इसका मतलब है उसकी डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होनी चाहिए। तो बाय दैट लॉजिक द पार्टिकल इज मूविंग टुवर्ड्स द सोर्स कुड बी द राइट आंसर। चूंकि ये एक प्रोग्रेसिव साउंड वेव है, साउंड वेव में पार्टिकल्स अप और डाउन मूव नहीं कर सकते, वो आगे और पीछे मूव करते हैं। बाय दैट लॉजिक द पार्टिकल इज मूविंग टुवर्ड्स द सोर्स, करेक्ट आंसर नीड्स टू बी बी। मैं एक छोटी सी ब्रेक लेता हूँ, देखता हूँ मेरी बातें सारी समझ आ रही हैं आपको या नहीं। लेट्स ट्राई एंड स्क्वीज इन अ कपल मोर क्वेश्चंस। ये एक बहुत अच्छा खूबसूरत सवाल था, आई एम प्रिटी श्योर ये लोगों से ठीक नहीं होगा, तो हम इसको अटेम्प्ट करके देख लेते हैं। हमें बताया जा रहा है टेक्निकल आर्टिकल अबाउट डीजल इंजन एक्सप्रेसेस द एनर्जी अवेलेबल फ्रॉम द डीजल फ्यूल 41.8 मेगा जूल्स इन 1 किलोग्राम्स। यानी फ्यूल का 1 किलोग्राम इतनी एनर्जी क्रिएट करता है, और उसी फ्यूल का 1 मीटर क्यूब, यानी अब ये वॉल्यूम की टर्म्स में उसने आंसर दे दिया है,
34.6 गीगा जूल एनर्जी क्रिएट होती है 1 मीटर क्यूब से। आपसे कहते हैं डेंसिटी ऑफ द डीजल फ्यूल निकालें। मुश्किल क्वेश्चन है, जरा मेरे साथ रहिएगा। डेंसिटी इक्वल्स टू मास ओवर वॉल्यूम होता है ना। क्वेश्चन में 1 kg से इतनी एनर्जी क्रिएट होती है। अगर मैं ये देख लूं कि 1 जूल कितनी एनर्जी क्रिएट करता है, 1 जूल एनर्जी कितने मास से क्रिएट होती है, तो मेरे पास एक मास की अमाउंट आ जाएगी। एक दफा फिर से, 1 किलोग्राम मास से इतनी एनर्जी क्रिएट होती है। अगर मैं ये देखना चाहता हूँ कि कितना मास 1 जूल एनर्जी क्रिएट करता है, तो 41.8 मेगा, नहीं जी, इनको करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। सो द मास दैट विल क्रिएट 1 जूल ऑफ एनर्जी, इट्स गोइंग टू बी 1 डिवाइडेड बाय 41.8 मेगा होता है 10 की पावर 6। इसी तरह 1 मीटर क्यूब क्रिएट्स 34.6 गीगा, गीगा होता है 10 की पावर 9। तो 1 जूल एनर्जी कितनी वॉल्यूम से क्रिएट होगी उसको हम एक्स कह लेते हैं। सो एक्स इज इक्वल टू 1/34.6 इंटू 10 की पावर 9। अब ये भी चूंकि एक तरह की वॉल्यूम है और ये चूंकि एक तरह का मास है, अब बस इसको हम मास और वॉल्यूम में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। 1/41.8 इंटू 10 की पावर 6 डिवाइडेड बाय 1/34.6 इंटू 10 की पावर 9। बेसिकली यहाँ ऊपर जो वैल्यूज दी हुई थी ना, उसमें एनर्जी वाज बीइंग एक्सप्रेस्ड, लेकिन हमने क्योंकि डेंसिटी निकालनी है तो हमें तो इंफॉर्मेशन मास और वॉल्यूम की टर्म्स में चाहिए। तो इतने जूल एनर्जी 1 kg मास प्रोड्यूस कर रहा था, इतने जूल एनर्जी 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम क्रिएट कर रहा था। तो हमने ये देख लिया कि 1 जूल कितनी देर में कितने मास से और कितनी वॉल्यूम से क्रिएट होगा, क्योंकि हमें मास और वॉल्यूम चाहिए जिसको डिवाइड करके डेंसिटी निकाल सकते हैं। नाउ वी आर जस्ट गोइंग टू सॉल्व दिस। दैट गिव्स अस 1 डिवाइडेड बाय 41.8 इंटू 10 की पावर में है 6, और 1/34.6 इंटू 10 की पावर में है 9। So the answer comes out to be 827। अच्छा, ये 34.9 है, सॉरी मेरे पास आंसर आ रहा है 834.9। आई राउंडेड ऑफ टू 835। अब सारी चीजें चूंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है, तो मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस कर देता हूँ। 8.35 इंटू 10 की पावर 2, दैट शुड बी माई करेक्ट आंसर। यस पीपल, डिड यू लाइक दैट क्वेश्चन? अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं तो छोड़ ही देता। दैट्स जस्ट टू मच ट्रबल। चलें, बस आज के लिए इतना ही करते हैं।